So the big match today is India versus Bangladesh. It is going to be the men in blue versus the Bangla Tigers. The title of our show today is that can Bangla Tigers push the men in blue? It's more wishful thinking, I think, because the way India has been playing is absolutely devastating. India have 3 wins out of 3 and an excellent run rate. They are top of the heap. Bangladesh are really running low after a loss to New Zealand by 8 wickets and with over 7 overs to spare. Shakib Ul Hassan, the bad news is that he is still not fit and he might play or not play. We'll have to wait and see. And Bangladesh are currently seventh with only 1 win in 3 games. My good friend CS is with me. So, CS, it's an obvious prediction after what India did to Pakistan. Look, you have to understand that this game is very different. And they are not just not in the tournament, they are not looking the best. Maliki, one of the even the lowest kind of sides, even Afghanistan and Netherlands are doing well than Bangladesh. But you have to look at the history also sometimes. 2007 World Cup, still remember in West Indies. We lost to Yes. them. Greg Chappell lost his job, and there was a whole scale of changes in the Indian team, and after that there was so much of backbiting also that followed after that defeat, and we were out of the tournament. But nevertheless, this Indian team is looking very solid. They have been scoring at a brisk pace. Their bowling unit is like the best in the world, and in fact, with the kind of bowling that Bumrah is displaying right now, I think he's looking more dangerous than any other bowler in any other outfit. So we have to look at that also. But Shakibul Hassan is certainly the key. And last game also, Arup, he has not played. He was not a fully fit, and he played despite that injury. So today I expect him to again take that chance and probably lead his side. Right. CS, let's talk about the pitch and the weather conditions. So it's around 31 to 32 degrees there. The surface, they say, is a batting paradise. I'll repeat that. I think we've got a bit of a tech Yeah. issue. So the weather conditions is 31 degrees, humidity is 48%, which is not as much as somewhere like a Bhubaneswar where or Gujarat where it was much higher. And it is quite a batting paradise, and the bowlers might feel the heat. Spinners get a bit of a bite from the surface, but the most important part is there will be dew in the second half, balls skidding off the surface. Do you agree with that kind of prediction that bowling first might be the best way to go about? I think with you there, and Pune, I was talking to some journalists there last night, and they were saying it's a very dicey, situation to bat in the night also, because the windy conditions are not the windy, but the chill there in the air is much more than any other place. It's not Chennai or Delhi. रात को थोड़ी सी ठंड ज्यादा है, ड्यू फैक्टर भी काफी ज्यादा है, तो इस हालात में तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट बॉल करना ही है, लेकिन बाद में भी जो जो बॉल चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं चाहे बैटिंग कर रहे हैं, आपको उस विंड को उस सर्दी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको शायद थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा वार्म रखना पड़ेगा. हेड टू हेड की बात करते हैं. जो स्टैट्स अवेलेबल है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हेड टू हेड इन ओडीआईज इन जनरल, कुल मिलाकर 40 मैचेस खेले गए हैं. इंडिया ने 31 मैचेस हैव बीन वन बाय इंडिया, only 8 have been won by Bangladesh, one with no result. So the odds are heavily stacked against Bangladesh. Yes. That only game in West Indies, that only hurts us. Otherwise, it's a वन साइडेड. और एक सीरीज हम वहां पर अगर आपको याद हो बांग्लादेश में हारे थे वनडे की, ये दो चीजें को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश इन बिटवीन मुझे लगा था कि अपने होम कंडीशंस में अच्छा खेलता है, और होम कंडीशंस आर मोर और लेस लाइक इंडिया. लेकिन फिलहाल दे हैव लॉस्ट देयर वे. थोड़ा टीम भी ट्रांजिशन में है, कप्तान का खुद का मालूम नहीं है, उनकी भी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट इमिनेंट है आफ्टर दिस टूर्नामेंट.
तो बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बांग्लादेश हमेशा से इंडिया को परेशान करने वाली टीम रही है। जैसे अगर आप देखें हॉकी में, तो पोलैंड इंडिया को बहुत परेशान करता था ओलंपिक्स में या कहीं भी क्वालिफायर्स में। ऐसी बांग्लादेश इंडिया को स्ट्रेच करती है, हरा नहीं पाती वो अलग बात है। इंडिया पाकिस्तान की तरफ वन साइडेड मैच कभी नहीं होता। तो अच्छा मैच होपफुली आज भी देखने को मिले, दैट्स ओनली आई कैन एक्सपेक्ट। Okay, now another interesting statistics I want to come up with, because figures don't lie. In 7 ODIs played at the venue, which is Pune, the Pacers have picked 78 wickets at an average of 32.83. Spinners have picked only 26 wickets at an average of 57.69. And the teams batting first have won 4 games, teams chasing have won 3. CS, with your experience, when we talk about these stats, like Pacers have picked up 78 wickets in all the ODIs, in 7 ODIs, sorry, played at the venue. Now, the important point to remember here is that both sides rely on their spinners also quite a bit, and particularly Bangladesh would. पहला सिग्नल तो आप ये कर रहे हैं कि अश्विन को फिर बाहर बैठना पड़ेगा, पानी पिलाएंगे, अच्छी सी वो रेड सी जर्सी पहनते हैं। और दूसरा सिग्नल ये भी लग रहा है कि हो सकता है इंडिया 4 पेसर के साथ जाए, जो मुझे मुश्किल लगता है। जिस तरह का हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, मुझे लगता है 2 स्पिनर भी जितना पुश कर रहे हैं बॉल को, रविंद्र जडेजा काफी तेज बॉल कर रहे हैं, कुलदीप यादव लगातार अच्छी तेज डिलीवरीज और उसके बाद भी घुमा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है 3 पेसर्स और इसी तरह चलेंगे। अगर मैं कोई एक हल्का सा चेंज देखना चाहूंगा, ऑब्वियसली मैं अश्विन को तो जरूर चाहता हूँ कि फर्स्ट स्पिनर वो खेले, वो नहीं होगा क्योंकि वो लोग मेरी और आपकी तो नहीं सुनते। लेकिन सेकंड मैं एक जरूर देखना चाहूंगा, जब आप आराम किसी आसान टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो शायद एक ऐसे बैट्समैन को खिलाया जाए, सूर्य कुमार यादव टाइप का, कि जिनको आपने देखा ना हो, जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए, खुदा ना खास्ता कभी आपकी इंजरी हो जाए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो वर्ल्ड कप में, तो आप एकदम उनको उतारेंगे तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। ऐसे मैचेस में शायद एक आधा चेंजेस करके आप उनको कॉन्फिडेंस और रादर उनको नंबर 3 नंबर 4 पे खिला करके उनसे थोड़ा बैटिंग की उम्मीद कर किया जा सकता है, जो होगा नहीं। वो एक अलग बात है, वो नहीं होगा। जी, मैं probable teams पे आना चाहता हूँ. So let's begin with Bangladesh first. Now, where the probable teams are concerned, so we have Tanzid Hassan, Liton Das. Liton Das, I am personally a big fan of his, and a couple of knocks he has played has been amazing, but he's been off color, which is very unfortunate. But he's one guy who can be pretty outstanding on his day. Then Najmul Hassan Santo, Shakib Al Hassan, whom we both acknowledge as one of the greats of the game when it comes as an all-rounder. Then Mehdi Hassan Miraz, Mushfiqur Rahim wicketkeeper, Tawheed Ridoy, Mehdi Hassan, Taskin Ahmad, Shariful Islam, and Mustafizur Rahman. Out of this, CS, let's begin with the Pacers. Now, Shariful Islam is a left armer. Then Mustafizur Rahman is also a left armer, and Taskin Ahmad is a right arm pacer, more famous for that Dhoni controversy and charging into Dhoni and those posters that came up in Bangladesh. So anyway, let's put the past behind. But talking about Taskin, Shariful, and Mustafizur, what do you think about this combination? देखिए, जब आप पेस की बात कर रहे हैं, तो पेस का थोड़ा सा स्पीड होना बहुत जरूरी है आजकल की वर्ल्ड क्रिकेट में। देर आर वेरी फ्यू पेसर जो 130 के आसपास, 127 पर भी आपको तंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्विंग बहुत अच्छी होती है अगर आप कुछ बॉलर्स की बात करें। लेकिन ओवरऑल आई थिंक 137 इज द स्पीड लिमिट, जो कहते हैं कि आजकल जो परेशान करने का मिनिमम रह गई है। उसमें इंडिया वाले तो फिट बैठ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेशीज खासकर जिस तरह से इनकी बॉल, कोई खास, मैंने जो लास्ट का एक मैच भी देखा था इनका, कोई बॉल कोई खास करामात नहीं कर पा रही, बट वो थोड़ा गर्मी वाली कंडीशंस भी थी। अगर आज ये बाद में बॉल कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं तो अलग बात है, बाद में कर रहे हैं कुछ बॉल, कुछ करतब कर रहे तो अलग बात है। अदरवाइज बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे। तस्किन भी उतने, मुझे लगता है कि उस तरह के फिट नहीं दिख रहे हैं मुझे। उनकी भी बॉल में वो जो कहते हैं कि पूरा एक स्ट्रेच करके जिस तरह से बॉल को थोड़ा पटका करते थे, वो भी नहीं दिख पा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है स्पिनर से ज्यादा इनको भी उम्मीद रहेगी, और इनके पेसर्स तो कोई खास अभी तक नहीं कर पा रहे। मैं जल्दी से इनके स्टैट्स बता देता हूं। तो तस्कीन अहमद राइट आर्म पेसर हैं, ये ओडीआईज में he has played 66 matches, he has taken 92 wickets, best is 5 for 28. Mustafizur, who has been the most talked about pacer from their side, has played in the IPL, is well known as Fizz, but that Fizz seems to have gone out of him because
He has played 96 matches, taken 158 wickets, although his best figures are 6 for 43, but he's nowhere near his best. Then Shariful Islam, left arm fast medium, 25 matches, 40 wickets, best figures 4 for 21. Over to you, CS. देखिए, मुस्तफिर जो है उनसे बहुत उम्मीदें रहती है, और खासकर आईपीएल का जो उनका एक्सपीरियंस है, उनको इन पिचेस से बहुत अच्छा खास अच्छा उनका जान पहचान है। यहाँ पर बॉल किया है, लगातार प्रैक्टिस की है। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस तरह की अभी तक इनका बॉलिंग यूनिट काम कर रहा है पिछले 3 मैचेस में, उसमें तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। सिर्फ वही है कि आपको ऐसे मैचेस में, खासकर इंडिया को जब आप परेशान करने की हिस्ट्री भी रही है, इंडिया के अगेंस्ट आप अच्छा भी अपना बेस्ट भी देते हैं, यही उम्मीद है कि आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड आएंगे और इंडिया को थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉट विल डिपेंड ऑन टॉस। अगर टॉस में पहले ये मुझे लगता है कि अगर ये बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली एक हल्का सा एज जो रहता है, बांग्लादेश को हल्का सा एज से ये शुरुआत होगी कि शायद 50-50 या 55-45 पे ये शुरू करें। बट अदरवाइज अगर ये बाद में इनका बॉलिंग करने का मुश्किल का आएगा तो बहुत मुश्किल होगा बॉल को ग्रिप करना, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर है वो पुणे में ज्यादा है बस बनिस्बत बाकी जगहों पर। इंडियन टीम की बात की जाए, पूरी टीम तो मैं पढ़ूंगा नहीं, हम सबको ही पता है, लेकिन सिर्फ 2-3 पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं। एक सीएस, हमने पिछले शो पे भी बात करी थी ऑन शार्दुल ठाकुर, और आपने सही बिल्कुल कहा था कि अब नंबर 8 पे भी अगर आपको एक बैटर चाहिए हु कैन बोल अ बिट, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शार्दुल हैज बिकम, देन इज इट रीजन एनफ टू लीव आउट रवि अश्विन हु कैन आल्सो बैट अ बिट? Well, I have a very different take on Ravi Ashwin. I think he's one bowler who could walk into any side in Right. the world as a number one spinner, and as a off spinner, he's the leading one, not just in India, but apart from that, that fear factor of Ravichandran Ashwin, उसका वो कैरम बॉल काम नहीं कर रहा, लेकिन उससे डर लगता रहता है, वो बॉल को सीधा निकालना उन्होंने अच्छा शुरू किया, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है। बट एनीवे, मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई रहम किया जाएगा या इस तरह का कोई चेंजेस होगा। अगर 3 स्पिनर खेल रहे तभी वो खेलेंगे। इंडियन टीम की स्ट्रेटेजी जी। मेरे को क्लियर हो गई है, पाकिस्तान से भी और उससे पहले भी जिस तरह दिखा रहे हैं कि अगर 3 स्पिनर खेलेंगे तब अश्विन की जगह, अदरवाइज हमारे पास 2 स्पिनर बिल्कुल सेट है, कुलदीप और रविंद्र जडेजा। तो ऐसे में पेसर्स पे ही बात करनी चाहिए कि पेसर में आप क्या शमी को कभी चांस देंगे या नहीं, या शमी आपका डिस्कार्ड हो गया। क्योंकि शमी को अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल 1-1.5 साल करीब वनडे ही नहीं खिलाया था, उनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। उस लिहाज से मुझे लगता है कि शमी की वापसी अब मुझे मुश्किल लग रही है। हम कितना भी कहें उनका रिदम, उनकी पेस, उनका एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके नंबर 3 जो पेसर है वो भी शार्दुल बन गए बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटी, एंड ऑल्सो प्रोबेबली टीम मैनेजमेंट का जो एक अपनी समझ है उनका, इसी तरह से लगता है। एक हमारे दर्शकों को ये समझाइए सीएस कि ये कुलदीप यादव अब बार बार दो वेरिएशन दिखाते हैं। एक 2 साल पहले का जब वो आईपीएल में उनका ब्रेकडाउन हुआ था, रोने होने लगे थे, बहुत पिटे थे, उसके बाद उन्होंने अपना टाइम यूटिलाइज किया पैंडेमिक में, और चेंज एक यही आया है कि वो अपनी गेंदें तेज फेंकते हैं, and that speed has increased. Suddenly this word is being, this phrase is being used to describe Kuldeep Yadav, mystery bowler. Where is the mystery? I couldn't see any mystery. Maybe sir you can. देखिए देखिए दिस इज द, मैं तो ये कहूंगा कि जो वर्ल्ड के जो बाकी के बैटर्स है जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने कुलदीप को ज्यादा नहीं खेला, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो इनको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनकी बॉल देखें तो मुझे लगता है 2 साल पहले ही एक स्पिनर थे, अब ये मोर ऑफ ए जो कहते हैं बॉल को ज्यादा पुश करने वाले या बॉल में कम वेरिएशंस करने वाले स्पिनर बन गए। पहले इनकी चाइना मन के साथ अगर आप इनकी रॉन्ग रन देखो वो बहुत खतरनाक होती थी, लेकिन उस टाइम पे इनको मार भी पड़ी बिकॉज ऑफ T20। इनको बहुत सा एक्सपोजर T20 में दिया गया, इनको आईपीएल लगातार खिलाया गया। तो ऐसे में इनका ये चेंज होना, जो जो सिस्टम था पूरा, जिस तरह की अप्रोच थी, वो चेंज होनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज ये खत्म हो चुके होते हैं। आज ये लेस ऑफ ए स्पिनर है लेकिन मोर ऑफ इफेक्टिव स्पिनर है, क्योंकि वही बात है जो कुंबले वाला स्टाइल था पुराना। कुंबले तो आए ही इसी तरह से थे, उन्होंने अपना पूरा एक अप्रोच उसी तरह की रही। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हमारे आ रहे हैं उनको एक तरह से या रविंद्र जडेजा बनना पड़ता है या कुलदीप यादव जिस तरह से हुआ कि बॉल को मोर ऑफ ए जो कहते हैं पुशर बन जाइए, जिससे आप उनको
एयर एयर में तो डिफीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लाइन में डिफीट करना पड़ेगा। आपको बॉल को कई बार लेग में पुश कर रहे हो, कभी ऑफ में कर रहे हो, लेकिन विद द मोर स्पीड, 100 के आसपास की स्पीड पे हमेशा बॉल कर रहे हैं, रादर 114 भी कई बार दिखती है जो जो फास्टर वन है। तो ये एक अलग तरह का तरीका, T20 का गेम है। इसमें कुलदीप को या हम किसी टीम वालों को हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये जो जो बैटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, वो इनको रीड नहीं कर पा रहे। वो इनके जो ज्यादा अपनी क्रीज में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से स्टंप ना हो या हम किसी तरह से पैड में ना खाएं। ये एक अलग तरह की अप्रोच है जो मुझे समझ नहीं आती। See, yes, talking about spinners, I want to ask you one particular point, which I noticed that whether it is Afghanistan bringing off that stupendous upset or the Dutch doing the giant killing against the South Africans, it is some of the spinners who have done the job. Would you say that some of these countries like England, Australia, New Zealand, South Africa, their players can no longer play the old style spin or even the stuff that is being bowled now, as well as some of the batters could in the past? And this is all a mind game. You know, most of these countries which we have talked about, they have been playing most of their cricket obviously in their on own home grounds or on their own pitches. उनकी पिचेस बहुत डिफरेंट है इंडिया से। उनकी पिचेस पे अगर आप स्पिन भी कर रहे हैं तो बॉल को स्पिन करवाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज मोर ऑफ ए टॉप स्पिनर और मोर ऑफ ए जो जो स्टेटर बन जाती है, उस पे आपको रॉन्ग अन बहुत कम दिखेगी। उनकी पिचेस पे अगर हमारे भी स्पिनर जाएं तो बहुत रेयर रॉन्ग अन दिखेगी, या बहुत रेयर दूसरा जो ऑफ स्पिनर वाला डालते हैं वो कैरम बॉल वो कम दिखेगी, क्योंकि उनकी पिचेस बहुत हार्ड है। यू कम टू दिस सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो जिस बॉल को सीधा खेलना चाहते हैं वो बॉल लगता है 1 फुट भी टर्न हो जाती है। हमारे यहाँ पर पिचेस इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से उनकी रोलिंग भी की जाती है। रोलिंग में बहुत कुछ खेल होता है, ये भी एक अलग चीज है जो हमने देखी है, हमने महसूस की है कि उस रोलिंग में भी ऐसा खेल है कि जब आप बॉल को सिर्फ छोड़ते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा सा फिंगर से स्पिन दे दिया या रिस्ट से दे दिया, बॉल का कंट्रोल आपके हाथ से चला गया। आप अगर कम स्पिन कर रहे हैं तब आपका कंट्रोल है। बॉल जब कई बार देख रहे हैं कि आप रविंद्र जडेजा की सडनली पड़ रही है और पूरा टर्न करके 40 डिग्री पे और निकल रही है, किसी को छका रही है, मुझे नहीं लगता वो कंट्रोल से वैसी बॉल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैसी कर रहे हैं तो वो कई बार कर रहे हैं। ये वन ऑफ दोज बॉल्स होती है, विकेट टेकिंग कह लो या जिसपे स्टंप भी करते हैं, आप पीछे छकाते हैं। तो ये एक अलग तरह की पिचेज है। उनका माइंडसेट यहाँ पर आने के बाद एडॉप्टेशन थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है, हम लोगों को नहीं। हमारे बैटर्स उसको उसी तरह से खेलते हैं रादर, और उनके बैट्समैन उसमें परेशान होते हैं। तो ये जो कहते हैं ना टॉप स्पिनर की तरह खेलना और बॉल टर्न करना, उसी बात को तो आपको कवर करना विद बैट एंड पैड। और मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स अगर आप देखें विकेटें जो ले रहे हैं वो आपको या तो पैड पर खा करके ले रहे हैं या फिर आपको छकाते हुए आपके बैट और पैड के बीच से जा रही है। तो एक वो प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। जी। एक मैचअप पे आते हैं, विराट कोहली वर्सेस शाकिब अल हसन, और इसमें विराट स्टैट्स आर प्रीटी गुड एट दिस वेन्यू. ही हैज प्लेड 7 ODIs in Pune, amassed 448 runs with an average of 64, which is excellent. But Shakib Al Hasan has dismissed Virat 6 times in international cricket, with 5 coming in ODIs. So, CS, any thoughts on this? देखिए, शाकिबुल इज अ वेरी जो कहते हैं स्मार्ट प्लेयर है। ही मे नॉट बी द बेस्ट इन यू नो इन एनी ऑफ द टीम और इवन इन बांग्लादेश, बट ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। वो क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन उन्होंने लिया और लंबे टाइम से 15 साल से ऊपर उनको हो गया खेलते हुए। तो यही उनकी जो खासियत है। जैसे अश्विन है, अश्विन मे नॉट बी ए ग्रेट मूवर ऑफ द बॉल, लेकिन उनका जो जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो बड़ा कमाल का है। वो बॉल को कब चलाना है कब नहीं चलाना है वो सोचते रहते हैं। बॉल वो अपने जो फॉलो थ्रू है उसको बहुत शफल करते हैं। आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा कैरम बॉल तो कम डालते हैं, लेकिन वो अपने आप को कैरम की तरह बहुत ज्यादा इधर उधर स्किड करते रहते हैं। सो शकीबुल फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। तो ऐसे में ऑब्वियसली खैर मोस्ट ऑफ द विकेट्स वही है, जब मारते हुए कोहली भी मारना चाह रहे होंगे, एक्सेलरेट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि शकीबुल हसन का कोई मेरे दिमाग में आ रहा हो, सच में कहूं, जिसमें शकीबुल ने उनको छका करके आउट किया हो, जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से। इस मोर ऑफ आप मारने गए उस तरह हो गए, आप उस तरह से मतलब कि उससे थोड़ा मात खा गए। बट ओवरऑल इट्स ए गुड राइवलरी। एंड शकीबुल
अगर खेलते हैं आरोप आज भी, तो मुझे लगता है टीम को एक हल्का सा एडिशन जरूर होगा। वो हाफ इंजर्ड थे, हाफ फिट थे लास्ट टाइम पे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बेशक चाहे टीम लूज की, लेकिन वो उनकी वजह से लूज नहीं की, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन पूरा ही रखा। Exactly. So CS, we'll leave it at that, and we will all watch India take on Bangladesh in Pune, and India is on the top of the table, sitting smug and happy. And after hammering Pakistan in the last encounter, Bangladesh are number 7. They are not so well off, and Shakibul Hassan, there is a question mark over his fitness. So it should be, and the prediction from our side is that India should be able to beat the Bangla Tigers. We'll wait and watch. Thanks, CS, for your time, and we will be back Thank you. with lots more. Goodbye. Thank you.